आज पुट करेंगे five sums more. Five sums are going to put what in today now. So again 10th standard geometry problem set 3. Correct. These today sums are very simple sums and easy sums. तो ये जो sum number 7 है ये activity sums है. They will give what like this in the exams. इसको हम लोग खाली fill करने का. This sum will come up what 3 or 4 marks के लाएगा. See. Now इधर क्या बोले see. Now both the circles that touch externally at point Z, X and Y the center, and AB is what passing through the point what Z. ये लोग प्रूफ बॉडी को प्रूफ करने का है. X A radius X A और radius Y B both are what parallel. करेक्ट. इधर कंस्ट्रक्शन में draw X Z and dash बोला है तो X Z and what sec Y Z. X Z और Y Z ड्रॉ किया हम लोग ने. ये फिलअप है. फर्स्ट फिलअप हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन. दूसरा बाय थ्योरम ऑफ टचिंग द सर्कल पॉइंट x y and z या x z y r dash, these 3 points they lies what in one line. When any points, when 3 or more points lies in one line, these points are called what? Collinear points. These points are called what? Collinear points. करें ये फिर हो गया हमारा. Now फिर बोला हमको B Z ये Y है. एक जस्ट वेट. सी X Z A ये एंगल दिया है. X Z A is congruent to dash. ये ऑपोजिट एंगल्स बोला है. ऑपोजिट मींस व्हाट? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दैट मींस X Z A के कौन सा एंगल ऑपोजिट है? ये एंगल ऑपोजिट है. इसके ऑपोजिट ये एंगल है. तो क्या आएगा इधर? B एंगल B Z Y. तो X Z A एक एंगल आ गया. डैश दिया है. क्या आएगा? B Z Y. These two angles are what? Opposite angles. Correct. Then next one दिया है when they are congruent, they are equal. दिया हम लोग को A. तो ये एंगल क्या होगा तुम्हारा? X Z A. यानी ये A है, ये A लिया हमने. करेक्ट. Now take this triangle. ये triangle ले लो. See X A Z. Let's see radius X A and X Z both are congruent. See X A और X Z ये क्या है? Both are what? Radius. क्या है इधर? Radius of a same circle. दोनों क्या है? Radius है. X A भी radius है और X Z भी radius. Correct. Again ये triangle ले लो. ये triangle में आ जाओ. See when these two angles, when these two sides are congruent, then base angles are also congruent. यानी X Z A और X A Z is equal to what? A. तो ये एंगल ले लो A. अब दोनों एंगल A हो गया. Isosceles triangle theorem. But when two in one triangle, when two sides are equal, when two sides are congruent, then base angles are also what? Equal. Why? Because isosceles triangle theorem. Correct. Now come to the second side में से नई ट्राइंगल ले लो. ये ट्राइंगल में B Y Z में B Y and what? Z Y. Y B दिया है. Y B दिया है. ये क्या आएगा? Y Z. Sec Y Z. Y radius of a circle. ये फिल किया हम लोग ने. Now same way अब ये दोनों एंगल में कौन सा एंगल दिया है? B by Z. This angle. This angle is congruent to what? This angle. Why? दोनों एंगल्स क्या है? ये when these two sides are congruent, then these two angles are also congruent. कौन सा एंगल है? ये एंगल है हम लोगों का Y B Z. Y B Z. ये एंगल और ये एंगल दोनों congruent है because they are called what? The because base angles are equal. Why? reason क्या है इधर? Isosceles triangle theorem. ये फिल कर दिया हम लोग ने. बस इधर देखो, इधर हम लोग को दिया है X Z A X Z X Z A X Z A दोनों इक्वल है. अब इधर B Z Y BZY ये दोनों इक्वल है. कौन सा एंगल बचा है हम लोग को? XAZ ये एंगल बचा है.
और क्या होता है वाई बी जेड, इधर क्या आएगा वाई बी जेड, ये एंगल। सो जो हमने ब्लॉक डाला है हम लोग ने वो सब इक्वल है, तो एंगल कौन सा बचा है हमारा एंगल, अब हम लोग का एंगल बचा है व्हाट, ये एंगल बचा है बी जेड वाई, वेट हाँ ऐसे एक्स ए जेड, ये एंगल बचा है और ये एंगल बच गया वाई बी जेड। सो दिस टू एंगल्स आर व्हाट नाउ इक्वल, वाई बी एक्स ए जेड एंड वाई बी जेड बोथ आर व्हाट नाउ इक्वल। इधर आएगा वाई बी जेड, दैट मींस 1 2 एंड 3 क्या मिला हम लोग को, these two lines are what parallel। कौन सा एंगल से, अब ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हो गया, these two angles are called what your alternate angles। इधर क्या आएगा by alternate angle test, these two radius are what parallel, correct। so this was the very simple sum, खाली fill up करने के हमको, तो please read the question properly and fill the sum what properly, correct। now sum number 8, very simple sum and short sum। this both the circle, ये एक circle है center y, ये एक circle है center x, both the circles touches what internally at point z, correct। so ये z क्या तुम्हारा internal point which is intersect at point what z, both the circle touches internally at point what z। प्रूव करने का है हम लोग को ax and by both are parallel, प्रूव करने का ax and by both are what parallel। कैसे प्रूव करोगे, लिसन दे आपने से, इधर कंस्ट्रक्शन है छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ sec zx and sec zy, करेक्ट। zx z by ड्रॉ किया हम लोग ने, नाउ अभी हम लोग करें समथिंग, नाउ लाइन z x y are collinear, why, z x y is collinear by circle touching internal at point z, correct। circle touching internal at point what z, so all the 3 points are what collinear, correct। then उसके बाद में then we going to study what about the, क्या करेंगे हम लोग पहले ट्रायंगल लेंगे, कौन सा a z x स्मॉल ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 इन ट्रायंगल a z x में x से और x z बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, sec ax कॉन्ग्रुएंट टू sec zx, ये ax और zx बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बाय radius of a smaller circle, correct। see when these two sides are congruent, तो ये एंगल बोथ आर congruent, एंगल XAZ congruent to angle XZA by isosceles triangle theorem, ये मिला हम लोग को ऊपर, ठीक। नाउ ये ले लो BZY लेने का, सी इन ट्राइंगल BZY बड़ा ट्राइंगल है हम लोग ने, अगेन तो क्या आएगा sec BY congruent to sec BY congruent to YZ, Y ये रेडियस है किसका, रेडियस ऑफ ए बिगर सर्कल या लार्जर सर्कल लिखो, करेक्ट। now when these two sides are congruent, so this angle again this angle both are congruent, angle YBZ congruent to angle YZA, why isosceles triangle theorem, correct। now YBZ लिखना है, देखिए
वाई जेड ए के बदली, सॉरी वाई जेड बी के बदली राइट व्हाट टेलिंग हमको एक्स जेड बी, एक्स जेड बी राइट, एक्स जेड बी वाई एक्स डैश सॉरी जेड वाई डैश जेड जेड और जेड डैश और वाई जेड डैश जेड डैश और एक्स करेक्ट। तो बीस ऑल थ्री लाइन्स आर व्हाट पोलिनोमियल। सी अब इधर जैसे क्या अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग को इक्वल टाइम मिला हम लोग को वाई बी जेड एक्स ए जेड, एक्स ए जेड और जेड एक्स ए। सी ना यहाँ पर देखो, सी यहाँ पर क्या ना these two angles are congruent। कौन सा एंगल से वो वाई बी जेड ये एंगल और वाई जेड बी, वाई जेड बी वाई आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम करना सी। अब अगेन ना ये कौन सा एंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया करेक्ट ना, वाई बी जेड आ गया ना इन केस ऑफ वाई जेड बी राइट व्हाट एक्स जेड ए, एक्स जेड ए वाई रहेगा वाई डैश जेड, इधर लिखो अगेन क्या कहता है जेड डैश ए जेड बी एंड जेड डैश एक्स डैश वाई करेक्ट। बस अभी इधर हम लोग को कॉमन लेने का, ये क्या है ये एक्स ए जेड एक्स ए एक्स जेड ए, सी एक्स जेड ए एक्स जेड ए, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो these two angles are what equal, so angle x a z congruent to angle y b z। ये कहाँ से मिला हम लोग को from 1 into this, when these two are congruent these two angles are also what, ये एंगल दोनों congruent है। कहाँ से मिला from 1 into when these two angles are congruent, see ये एंगल और ये see ये एंगल और ये एंगल congruent है। कौन सा एंगल्स हो गए ये corresponding angles हो गए करेक्ट। so therefore ray XA is parallel to radius XA is parallel to what radius BY। रीजन क्या आएगा BY, रीजन क्या आएगा by corresponding angle test, but corresponding angle test these two lines are what parallel correct। so ये था हम लोग का what the sum number 8। see sum number 9, ये सर्कल है O सेंटर है, R is chord है, R is 12 दिया है हम लोगों को और P is the what L line L is the tangent at point P correct। now इधर हमको फाइंड करने का रेडियस कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ seg OR, pick a point T on a line L, take a point T on a line L correct ना। सी then प्रूव करेंगे हम इधर, सी now angle OPT is equal to what 90, क्योंकि ये रेडियस है ये टैंजेंट है। रीजन क्या है टैंजेंट थ्योरम, tangent theorem correct। OPT is 90 by tangent theorem। now R is parallel to line L, R is और line L दोनों parallel है। अगर दोनों parallel है so OP is a OP ट्रांसवर्सल है, therefore एंगल ये एंगल O R क्यों ले लो
ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ओ पी टी। ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। व्हाई? दे आर कॉल्ड व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट। लेकिन ओपीटी कितना है? 90। देखो एंगल ओ क्यू आर इज ऑल्सो व्हाट? 90। तो ये भी 90 हो गया हमारा। दिस एंगल इज व्हाट? 90। अगर ये 90 है, ये मिला हम लोग को व्हाट? फ्रॉम 1 से। सो ओ क्यू परपेंडिकुलर टू व्हाट? कॉर्ड आर एस। अगर ये 90 है तो ओ क्यू क्या हो गया? परपेंडिकुलर कॉर्ड आर एस का। अगर परपेंडिकुलर कॉर्ड आर एस का, देयरफॉर फाइंड करो व्हाट? आर क्यू। आर क्यू हाफ ऑफ कॉर्ड आर एस। इसमें मालूम हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द center of a circle bisects the chord, correct? Therefore RQ is equal to half into a कितने chord? 12. So RQ is equal to 6. RQ क्या लेते हैं इधर? एक बार 6, correct? तुमको रेडियस फाइंड करने का है। What to do? Let रेडियस डी 2x, तो ये भी 2x आ गया और OP भी 2x, करेक्ट ना? सी अगर OP 2x है, फाइंड करने के बाद OQ, देयरफॉर OQ इज हाफ ऑफ क्या? OP। OQ हाफ ऑफ व्हाट? OP। सो OQ is equal to half into 2x। OP कितना है? OP 2x है। Why OP 2x है? Because ये रेडियस है। ये कितना? ये रेडियस है, ये रेडियस है। अगर रेडियस 2x है तो OP भी रेडियस है, तो रेडियस कितना रहेगा? 2x होगा। कट कर दो इसको। So OQ is equal to what? X। So OQ x मिला। अब एक ट्राइंगल लेने का, राइट एंगल ट्राइंगल लेने का। इन ट्राइंगल O Q R, एंगल Q is equal to what? 90। अगर ये 90 है, ये हो गया what? हाइपोटेन्यूज। सो OR स्क्वायर OQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। OR 2x, OQ x, RQ 6 स्क्वायर, करेक्ट? 4x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 36। इधर ले लो 4x स्क्वायर, ये प्लस है, माइनस इज इक्वल टू व्हाट? 36। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 36। x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 3। x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू व्हाट? रूट 12, करेक्ट? सो x इज इक्वल टू 4 into 3, x is equal to 2 root 3। ये x मिला, but we have to find what the radius find करने का, करेक्ट? So क्या? रेडियस क्या हम लोग का? रेडियस OR is equal to 2x, करेक्ट? 2x। so 2x की वैल्यू क्या मिली है? 2 root 3। Therefore 4 root 3 is the answer। 4 root 3 सेंटीमीटर ये मिला हम लोग को द रेडियस। So रेडियस क्या मिला हम लोग को? 4 root 3 मिला, करेक्ट? So this was the, थोड़ा लेंथी है बट लेकिन somewhat easy है, करेक्ट? खाली याद रखने का हम लोग को इसमें से इधर QR फाइंड करो, OQ फाइंड करने का एंड टेक द रेडियस फॉर 2x। इजीली आंसर मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, करेक्ट? तो हम पुट व्हाट द नेक्स्ट सम। सी सम नंबर 10, ये सर्कल है, C center है, AB is a diameter और line PTQ is a tangent to the circle, correct? ये तीन लाइन नहीं दिया हुआ है। AP perpendicular to what? line L, correct?
सी टी नहीं दिया है और बी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ये दोनों परपेंडिकुलर है। सो ड्रॉ सी पी। कंस्ट्रक्शन क्या हमारा इधर, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सी पी सी टी एंड सी क्यू। क्या ड्रॉ करने का है, सी पी ड्रॉ करो, सी टी ड्रॉ करो, सी क्यू ड्रॉ करो, दीज थ्री लाइन्स हमको ड्रॉ करना है। करेक्ट ना। अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्रूफ ले लो। सी इधर हमको प्रूफ करने का है सी पी एंड सी क्यू, सी पी एंड सी क्यू बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कौन बताएंगे। करेक्ट। तो कैसे करें सी, सो पहला ए पी परपेंडिकुलर टू AP perpendicular to what, AP perpendicular to CQ by given CT perpendicular to AP perpendicular to PQ, CT perpendicular to PQ by tangent theorem और PQ perpendicular to what, PQ by given all the three C, AP, CT और BQ, they are perpendicular to what, same line PQ. Correct. So therefore AP parallel to CT parallel to BQ. Correct. See, perpendicular to the same line are what, पैरेलल। अगर तीनों लाइन परपेंडिकुलर है, सी ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, सो तीनों परपेंडिकुलर है, दिस थ्री लाइंस आर व्हाट, पैरेलल, परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर व्हाट, पैरेलल। करेक्ट ना, सेम। नाउ अगर ये परपेंडिकुलर है, सो PP अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन CB। करेक्ट। इसका रीजन आएगा, थ्योरम ऑन 3 intersected lines and their transversal, ये 3 लिखो, theorem on 3 intersected lines and their transversal. Correct. See now उसके बाद में से, लेकिन AC और CB दोनों इक्वल है, why, रेडियस ऑफ ए व्हाट, सेम सर्कल, नो सी AC CB ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो बोथ आर इक्वल। सो AC अपॉन CB इज इक्वल टू 1, इसको नीचे ले लो, देखा रहेगा 1। राइट। सी अगर AC CB 1 है, अगर इसकी वैल्यू अगर 1 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, PT अपॉन TQ इज इक्वल टू 1। करेक्ट। अगर AC CB की वैल्यू 1 है तो PT और TQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो PT इज इक्वल टू व्हाट, TQ, ये मिला हम लोग को व्हाट, 1। करेक्ट। नाउ PT एंड TQ बोथ आर इक्वल। अब लेने का ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PTC एंड ट्राइंगल CQT, दो ट्राइंगल लिया हम लोगों ने, PTC CTQ, दो ट्राइंगल लिया हम लोगों ने। नाउ सेक PT कॉन्ग्रुएंट टू सेक TQ, वाई, फ्रॉम कहाँ से मिला हम लोग को, फ्रॉम 1। करेक्ट। एंगल CTP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CTQ, वाई, बोथ आर
90, दोनों 90 है बिकॉज टेंजेंट है, करेक्ट, बिकॉज ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। और इसके बाद में दें सेग सी टी कॉन्ग्रुएंट टू सेग सी टी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। वाई? कॉमन साइड हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल पी टी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू टी बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। These two triangles are formed by ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, साइड एंगल साइड टेस्ट। Therefore seg CP congruent to seg CQY CS corresponding sides of a congruent triangles, correct। सो प्रूफ करेंगे तो CP और CQ कॉन्ग्रुएंट है तो CP एंड CQ क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा, करेक्ट है ना। सो ये इजी प्रूफ है, वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसको बार बार करो बिकॉज एग्जाम्स में आने का चांसेस है, करेक्ट। नेक्स्ट सम नंबर 11, ये कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ द सर्कल विद सेंटर ABC। तो बोला है 3 सर्कल ड्रॉ करने का है, सेंटर A, सेंटर B, सेंटर C, ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हर एक का रेडियस कितना होना चाहिए 3, सच दैट ईच सर्कल टचेस अदर 2 सर्कल, हर एक सर्कल 2 सर्कल को टच होना चाहिए, करेक्ट। सी दैट मींस व्हाट, ये रफ फिगर है, फर्स्ट रफ फिगर ड्रॉ करने का है, सेंटर A, सर्कल भी सेंटर B, सर्कल भी सेंटर C, और तीनों सर्कल थ्री सर्कल टचेस दी 2 सर्कल, ये सर्कल ये दोनों को टच हो गया है, ये सर्कल ये दोनों को टच हो गया एट पॉइंट P, Q एंड R, और हर एक का रेडियस दिया 3 है। Now how to draw this one? See, first analyze करने का इसको, let the circle with center A, B, C, correct, touches at point P, Q, R, ये circle touch at point P, ये circle they touch at point Q, ये circle they touch at point what? R, externally. So such that A dash, P dash, B, A dash, R dash, C, C dash, Q dash, D. Why? By theorem on touching the circle. So AB कैसे मिलेगा? AP प्लस PB, AP 3, PB 3 प्लस 3 6, तो AB कितना मिला 6, सिमिलरली AC कितना मिलेगा 6, BC कितना मिलेगा 6, तो 6 6 6 है, दैट मींस इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो पहले ड्रॉ करने का, हाउ टू ड्रॉ दिस फिगर, पहले ड्रॉ करो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर कट किया, ये ड्रॉ किया हम लोग ने व्हाट A B C, करेक्ट, 6 6 6, करेक्ट, पहले ड्रॉ करने का इक्विलैटरल ड्रॉ करने का। सी उसके बाद में फ्रॉम सेंटर A से, सी रेडियस कितना है इसका 3 है, करेक्ट, तो रेडियस 3 है, 3 सेंट से 3 रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस लेने का, फ्रॉम A से ड्रॉ द सर्कल, B से ड्रॉ द सर्कल, C से ड्रॉ द सर्कल, सेंटर A लेने का ड्रॉ द सर्कल, सेंटर B लेने का ड्रॉ द सर्कल, सेंटर C लेने का ड्रॉ द सर्कल, करेक्ट। ऑल द 3 सर्कल्स विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट व्हाट, ये तुम्हारा दिस पॉइंट इज व्हाट, ये P और ये Q और ये R। So A, B, C touch at point what P, Q and R। इस तरह से to draw what the circle, ये कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर and what, so each radius of the 3 circles are what 3 centimeters, right? So today we have uploaded what the 5 sums. Next 5 sums we are going to upload what the in the next video, okay? Till then, goodbye, stay safe at home.